हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीडिया। आज मैं आपके सामने चार स्टॉक्स लेके आया हूँ एफएनओ स्पेस से, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर है, लेकिन शायद अभी उनमें हमें एंट्री मिले या ना मिले। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे और टारगेट कहाँ रखेंगे, ये सब चीज़ें जानने की हमें कोशिश करनी है। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो है टाटा कंसल्टेंसी। तो टाटा कंसल्टेंसी जो है एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है। तो ये स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है या नहीं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो टीसीएस अगर आप देखें, ये यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है दैट इज अराउंड 3337। तो प्राइस इस लेवल को बार बार, इस ट्रेंड लाइन को बार बार टेस्ट कर रहा था और बार बार नीचे जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें एक ब्रेकआउट दिया इसने और प्राइस ऑल द वे वेंट टू अराउंड 4000 लेवल्स। तो यहाँ पर 4000 लेवल्स तक स्टॉक चला गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर आप देखें, प्राइस ने यहाँ पर 4000 लेवल टेस्ट किया और उसके बाद एक और बार प्राइस ने यहाँ पर इसी लेवल को फिर से टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्राइस सरवाइव नहीं हो पाया और यहाँ एक गैप डाउन ओपनिंग मिली। बहुत ही जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग थी, क्योंकि उस दिन एक्चुअल में स्टॉक के रिजल्ट्स आ गए थे, जो कि रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इसके अनुकूल नहीं थे। विद द रिजल्ट, स्टॉक वेंट डाउन and hit this support, which was once a resistance of 3337. So 3337, which was once a resistance, became a support here. After that, what happens? The price is actually facing the heat here at 3600 levels. और उसके बाद अभी प्राइस जो है वापस इन्हीं लेवल्स पे आ सकता है, 3337 level. And if it comes to that level, whether we should buy it or not, that is to be decided now. So let's move on to the option chain and let's try to understand the significance of this 3337 levels. Let's try to understand this. So right now we are on the option chain. So what exactly is at 3337 levels? So around 3337, it corresponds to around 3340. So this level, right? So this is the level which we are talking about. This is the level. This is the level which TCS can touch in future. I mean, it can come further down to that level. Now, why do I think that it can come down to this 3340 level? Is because if you look at this gray portion, this is in the money call side and this is in the money put side. If you see here in on the call side, you don't see much call writers being trapped here. Not many are trapped. But if you see this on the put side, there are a lot of put writers trapped right now. And on the chart, I can see that there's a resistance, price is not going up. At the same time, there are put writers which are trapped here in the option chain on the in the money side. So at the same time, if I see here, this 7543 call writers are at 3500 levels. So 3500 level, I see a lot of call writers here. I don't think the price will cross this 3500 level for now. It looks little difficult because on the put side we have only 3400 contract shorts, but on the call side we have 7500 contract short. So it doesn't look like that this level would be breached. At the same time, when these guys close their position, these put writers who give support to the stock, and when these guys close their positions, what will happen? The price can drop, and price can drop, and price can reach up to this 3360, 3340 levels, and that will be the level where we have to buy. So guys, trading is all about uh, watching the stock, trying to analyze when I have to enter and enter with the discipline and with the proper stop loss. So we have to target this 3340 level, and whenever this stock comes very close to this level, we can make a buy here, because there is no call writer sitting here. At the same time, there are a few put writers here. If I go a little higher, let me just show it to you. If I go a little higher, there's a put writer sitting here. See, there's a put writer sitting here. So there is a support here at 3300 level, and there's absolutely no call writer sitting here, so there is no resistance here. So 3300 level looks like a safe entry, but I would buy anywhere between 3300 to 3320 or 3340 based on the price action I will
definitely take a position in this stock. So this was our stock number one, which is TCS. Let's move on to the next stock. So friends, the next stock which I have on the cards is Muthoot Finance. Now, if we try to understand the structure, the price structure of Muthoot Finance, we'll see that this 1600 level carries a lot of weight. What sort of weight does it carry? Let's try to understand. Price hit the 1600 levels here, and then there was a slight downfall, not much of it, but it tried to test it again. This time it got dragged back and it hit a low. After that, price consolidated in a rounding bottom pattern. It hit the resistance again here. Again, it faced the heat and it went down. And then, if you see here, the breakout happened. So the breakout was a clear signal that I'm going up. Next day, if you can see, the price tested this resistance as support here with the help of this candle. And then what happened? The price went up. Price went up and got stopped here because the highest call writer was sitting here at 1700 levels. So I'm not going to show you the option chain for this stock because option chain is not liquid for this stock. So I won't show you the option chain for this stock. So for this stock, let's stick to the price action only. But मैंने आपको इतना कह दिया है कि highest जो call writer था that was sitting at 1700 level. So that means we had resistance at 1700 level. Then what happened was that price is still coming down, right? I somehow don't think that, so whatever is happening at the low volumes. So I don't see that the price will breach this candle. It doesn't look like so. ऐसा लगता तो नहीं है कि price इस candle को breach करेगा. अब सवाल है कि ये price नीचे क्यों आया? इस candle को follow up मिला या नहीं मिला? Yes, this candle got the follow up and it got follow up 1, 2, 3, 4 candles were very good candles and ऐसा लग रहा था कि मुथूट फाइनेंस यहाँ से काफी ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो ये 3 कैंडल्स यहाँ पर बने, ये 3 कैंडल्स इसलिए बने क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा था, लेकिन अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम चेक करें तो वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं है। तो ऐसा लगता है कि प्राइस जो है बहुत जल्द यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा। So whether you should enter into this stock or you should not enter into this stock, it depends on this level now, 1600 level. So this 1600 level has to be watched like a hawk. इस 1600 level को आपको बहुत करीब से देखना है. If the price on the way down, we are not going to enter into the stock, but on the way up, we can definitely enter into the stock. So let the stock fall under the effect of gravity. चाहे जितना नीचे जाए जाने दीजिए. उसके बाद जब ये स्टॉक वापस इन लेवल्स पे आएगा तब हम इसके अंदर एक बाई की पोजीशन बना सकते हैं. So wait for the 1600 levels to be broken on the upside, not on the downside, because you see this candle, जो ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये देखिए आपने दिन के लोज पे क्लोज हुआ है. It has closed on the low, so at the lower side of the candle there is hardly any lower shadow here. So this is a very strong bearish candle और ये कैंडल यहाँ पर इतना जबरदस्त है कि शायद यहाँ से थोड़ा और फॉल आ जाए. So on the way down, we are not going to enter into this stock. We'll wait for the stock to go down, and when it comes up, on the way up, we will enter into this stock. But keep in mind, the biggest call writer is sitting at 1700 levels. Now the question is, should I enter here with my full position size, or should I enter here with the half position size or quarter position size? So I would say that you should enter with a 50% position size here and then analyze what's happening here at 1700 levels. If you see positive movement here, अगर आपको यहाँ पर कुछ positive दिखता है तो then you can यहाँ पर आप एक position अपना बाकी का 50% ऐड कर सकते हैं. Otherwise, if you see bearish thing happening here, then you have to exit. But I think that this is a very high probability buy setup. So Muthoot Finance can definitely give a upside. The reason why I'm telling you this is that whatever happened, the up move was on the high volume and the down move is on a low volume. So clearly there's a chance that this stock can go higher in the coming days, but you have to wait till the stock, after going down, it starts to go up, then you have to enter into this stock, not on the way when it is going down below the resistance. So this is my second stock. Now let's move on to the third. So guys, next stock which I have on the cards is
Hindustan Petro. Let's try to understand what's happening in Hindustan Petro. So guys, Hindustan Petro was hit by the resistance here, which is at around 312, 313 levels. So price hit this high here, tested it again, went down, second time tested it, again went down. तो बाद में उसे ऐसा लगा कि अब मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता, बिकॉज दो ट्राई इसने मारी, पहली बार आया, फिर सेकंड टाइम आया, फिर थर्ड टाइम आया, तो दो बार इसने इसको टेस्ट किया, दोनों बार इट कुड नॉट सक्सीड, सो इट वेंट डाउन. तो ये जो नीचे गया इट वेंट इन अ डाउनवर्ड चैनल. आफ्टर दैट यू सी अ बॉटम ऑफ फॉर्म्ड हियर एंड देन द प्राइस गेव अ ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड. प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और अगर आप देखें उसके बाद प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, वापस आके इसको रिटेस्ट किया, हल्का सा नीचे गया और फिर से प्राइस वापस ऊपर चला गया. तो अब आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? मेरा ख्याल है by looking at this it looks quite clear that whenever stock comes to 312 levels or something like that, you can make an entry into this stock for sure. और यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ये देखें ये पोजीशन ब्रीच नहीं हुई, तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो इससे हल्का सा थोड़ा और नीचे लगा दे और वेट करे इस स्टॉक को इधर आने का. When the stock comes to this level at 312 levels, you can easily enter into this and make a position into this stock. Now the question is, was this breakout a dependable breakout or was this breakout a fake breakout? ये हमें समझने की कोशिश करनी है. तो यहाँ पर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को नीचे की तरफ तोड़ा, लेकिन फौरन बाद अगले ही दिन यहाँ पर एक कैंडल बना जो कि बुलिश कैंडल था, और उसके बाद एक फॉलो थ्रू मिला, एक क्या कहते हैं गैप अप ओपनिंग मिली, नेक्स्ट डे फिर से गैप अप ओपनिंग मिली और प्राइस ऊपर चला गया. तो प्राइस जो इधर अटका है वो इसलिए नहीं अटका कि स्टॉक के अंदर ताकत नहीं है, स्टॉक के अंदर खूब ताकत है, लेकिन मार्केट में ताकत नहीं है. विद द रिजल्ट द प्राइस वेंट डाउन. सो वी कैन डिपेंड ऑन दिस ब्रेकआउट. ये ब्रेकआउट जो है हम इसको ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट काफी, इसमें तीन कैंडल जो है, ये तीन कैंडल्स हमें साफ साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि भाई ये ब्रेकआउट एक ट्रस्टेबल ब्रेकआउट है. ये जैसे आप यहाँ देखें, सॉरी यहाँ तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको आने वाले टाइम में दिखाऊंगा कि कौन से ब्रेकआउट्स होते हैं जो फेल होते हैं और जो वो पहले से ही हमें ये संकेत देते हैं कि मैं फेल होने वाला हूँ. तो खैर, अभी अगर आप देखें, काफी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि ये इंडिकेटर कौन सा है, आप हमें बताएं. तो अगर आप tradingview.com पे जाएंगे तो वहां आप ये टाइप करें RSI_RSI एवरेज, यू गेट दिस इंडिकेटर. अब इस इंडिकेटर की खास बात यह है कि जब प्राइस इन दो लाइंस के बीच में होता है तो हम बाय नहीं करते, और प्राइस जब इन दो लाइंस के ऊपर आ जाता है तो तब हम, मेरा मतलब ये जो ऑरेंज लाइन है, इस ऑरेंज लाइन के ऊपर जब प्राइस चला जाएगा तो तब हम इसको बाय करेंगे. और दूसरी इंडिकेशन ये है कि जो ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर होनी चाहिए, तब हम इसको बाय करेंगे. तो बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि ये ग्रीन लाइन इस रेड लाइन के ऊपर आ जाएगी, और इसमें हमारे पास एक ओवरबॉट लेवल भी है और ओवरसोल्ड लेवल भी है. ओवरबॉट लेवल इसमें RSI 80 है, ओवरसोल्ड लेवल इसमें RSI 20 है. तो ये RSI जो है ये एवरेज है जो हम यूज करते हैं. तो जो आपकी ग्रीन लाइन है वो मेरा ख्याल एवरेज लाइन है, और जो रेड लाइन है वो RSI नॉर्मल लाइन है. तो जब इसका एवरेज ज्यादा होगा तो ये इसको ऊपर की नीचे से ऊपर की तरफ कट करेगा, एंड देन यू कैन मेक अ पोजीशन इनटू दिस. एंड इफ यू सी हियर, अगर आप इस मोमेंट को देखें, ये मोमेंट अगर आप देखें, यहां से जब स्टॉक ऊपर गया था तो हमेशा जो ब्लू ग्रीन लाइन थी दैट वाज अबव द रेड लाइन, एंड सी व्हाट अ मूव वी गॉट व्हेन द प्राइस वेंट ऑल द वे अप. और यहाँ पर जैसे ही इसने ग्रीन लाइन ने इस रेड लाइन को नीचे की तरफ काटा, उसके बाद स्टॉक जो था उसका जो प्राइस था वो साइडवेज डायरेक्शन में चला गया. So guys, I am not going into the option chain of this stock because ये स्टॉक एक लिक्विड स्टॉक नहीं है, इसकी ऑप्शन चेन बहुत ही ज्यादा वीक है. So I will not go into the option chain of this stock. We have to take a position based on the price action only. So whenever the stock comes to these levels, around 300 levels or around 310 or around 35, you can make entry into this stock. Why you will make entry into the stock? Because you are convinced कि ये जो ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट एक डिपेंडेबल ब्रेकआउट था, ये कोई फेक ब्रेकआउट नहीं था, और ये स्टॉक आने वाले दिनों में ऊपर जाने की ताकत रखता है. तो दोस्तों, ये था हमारा तीसरा स्टॉक,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो आइए अब आगे बढ़ते। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, स्टॉक का नाम है सन टीवी नेटवर्क्स। तो सन टीवी नेटवर्क्स में क्या हो रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये एक प्राइस लेवल लगा देता हूँ जो आपको ये बताएगी कि ये कौन सी लेवल्स है जो इम्पोर्टेंट है इस स्टॉक के अंदर। तो 550 मोटा मोटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्टॉक, क्योंकि यही 550 लेवल पे स्टॉक यहाँ से नीचे गया, सेकेंड टाइम यहाँ से नीचे गया, थर्ड टाइम यहाँ से नीचे गया, और उसके बाद फोर्थ टाइम यहाँ पर एक बेस बनाने के बाद इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया। और अगर आप इस कैंडल को देखें, इस कैंडल में आप क्या देख रहे हैं कि बेयरिश एनगल्फिंग हुई और बस इतना ही काफी था इस स्टॉक को नीचे जाने के लिए। ये बेयरिश एनगल्फिंग ने इतना जबरदस्त मोमेंटम जनरेट किया कि अगर आप देखें ये ग्रीन लाइन जो है ये इस रेड लाइन से नीचे चली गई और प्राइस ऑलमोस्ट बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम के साथ नीचे आ रहा। तो ये स्टॉक लेना है या नहीं लेना है, आइए इस पे थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा और फोकस में ले लेता हूं ताकि आप इसको समझ सकें अच्छे से। तो अब हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए एट दीज लेवल्स एंड व्हाट हैपेंड हियर। लुक एट दिस। जो मैं आपको लास्ट वीडियो में कह रहा था कि फेक ब्रेकडाउन क्या होता है, फेक ब्रेकआउट सॉरी क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखें किस तरीके से प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया और आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से इस ग्रीन लाइन ने इस रेड लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ा। लेकिन नेक्स्ट ही कैंडल अगर आप देखें कोई फॉलो थ्रू नहीं है। नेक्स्ट कैंडल रेड है और उसने इस हाई इस कैंडल के हाई को नीचे की तरफ रीच किया और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से ये नीचे आया। तो ये जो ब्रेकआउट था इट वाज सिंपली अ फेक ब्रेकआउट। व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो फॉलो अप आफ्टर दिस व्हाट यू कॉल द बुलिश कैंडल। देयर वाज नो फॉलो अप आफ्टर द बुलिश कैंडल। आफ्टर दैट स्टॉक ने एक जबरदस्त पेस बनाया, ऊपर चला गया और यहाँ पर देखिए क्या हुआ। अब ये ब्रेकआउट एक डिपेंडेबल ब्रेकआउट है या नहीं है, हमें ये समझना है। ये ब्रेकआउट एक डिपेंडेबल ब्रेकआउट तो है, लेकिन इस पे प्रॉब्लम्स बाद में आई है। अब ये ब्रेकआउट एक डिपेंडेबल ब्रेकआउट क्यों था, क्यों ऐसा लगा कि डिपेंडेबल ब्रेकआउट था और कैसे ऐसे हालात क्या चेंज हो गए जो हमें लगा कि नहीं अब इसमें से बाहर आना चाहिए। उसका रीजन ये है कि इसने एक अच्छी बेस बनाई है यहाँ पर और बेस बनाने के बाद ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़ा। ये देखिए ये अच्छा एक बुलिश कैंडल बना, उसके बाद गैप अप ओपनिंग और नेक्स्ट कैंडल बना। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट कैंडल है वो उतना नीचे नहीं आया, नीचे आपको शेडो दिख रही है और वो शेडो जो थी हल्का सा बाइंग प्रेशर बताती। खैर ये कैंडल तो एक इनकंक्लूसिव कैंडल है, लेकिन अगर आप उसके बाद नेक्स्ट टू कैंडल्स देखें तो नेक्स्ट टू कैंडल जो थे वो कन्विंसिंग थे काफी कि बायर्स आर फुली इन कंट्रोल ऑफ दिस स्टॉक। बट व्हाट हैपेंड इन दिस कैंडल, ये कैंडल एक ऐसा कैंडल था जिसने पूरे हालात ही बदल दिए। तो दिस वाज ए बुलिश एनगल्फिंग और आप देखिए कितनी खतरनाक बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पर हुई है कि प्राइस इस कैंडल के ऊपर खुला लेकिन इस कैंडल से नीचे क्लोज हुआ। तो कितना ऊपर खुला और कितना नीचे चला गया, दैट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी सीन। तो कितने लोगों को इसने ट्रैप किया होगा और उसके बाद होना वही था। अब अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है तो आपको यहीं पे एग्जिट करना चाहिए था। अब जिन लोगों ने एग्जिट नहीं किया, जिन्होंने यहाँ पर ये सोचा था कि भाई ये एक अच्छा ब्रेकआउट है, और वो सही भी थे क्योंकि ब्रेकआउट जो था इट वाज रियल ब्रेकआउट, इट वाज अ वैलिड ब्रेकआउट। बट ये कैंडल ने पूरी सिचुएशन चेंज कर ली और उसके फौरन बाद जैसे ही ये कैंडल बना था यहाँ पर जो भी इन्वेस्टेड थे यहाँ पर उनको यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए था। अब वो लोग अगर बने रहेंगे तो स्टॉक वापस उन्हीं लेवल्स पे आ गया जिन लेवल पे पहले था। अब मैं समझता हूं कि स्टॉक को इन लेवल्स से नीचे नहीं जाना चाहिए। Again, we'll use the same trick here. We are not going to buy this stock when it is going down, but we will buy this stock when this stock goes up. और कहाँ जाएगा ये? अगर मैं यहाँ पर इस प्राइस लेवल को दिखा दूं आपको तो 550 की लेवल, जब ये स्टॉक इस 550 की लेवल को ऊपर की तरफ काटेगा, यानी कि जब ये नीचे से ऊपर जाएगा, हमें बाई तब नहीं करना जब स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा है, हमें बाई तब करना है जब स्टॉक नीचे से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बाई पोजीशन ले सकते हैं और ये मेरा ख्याल है स्टॉक हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट जो था वो एक वैलिड ब्रेकआउट था। कुछ हालात ऐसे हो गए कि इसे नीचे आना पड़ा, लेकिन वो हालात मैं समझता हूँ
बदले जा सकते हैं अगर ये स्टॉक 550 लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देता है तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस सन टीवी नेटवर्क का। इसके साथ हमने आज के दिन 4 स्टॉक्स का एनालिसिस कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे लेके चलता हूँ, जहां पर मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि हमने हमारी जो यूट्यूब चैनल है इसके अंदर अब आप एक ज्वाइन बटन देखेंगे। तो ज्वाइन बटन के अंदर कोई भी वीडियो अगर आप खोलेंगे वहां आपको एक ज्वाइन बटन दिखेगा। सपोज कीजिए मैंने ये एक ये एक वीडियो खोल दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे एक ज्वाइन बटन दिखेगा। अगर मैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर करूंगा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। अब जैसे मैंने आज आपके साथ 4 स्टॉक्स शेयर किए, इसमें से कुछ स्टॉक्स हाई प्रोबेबिलिटी है, कुछ स्टॉक्स लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है, लेकिन यहाँ पर जो मैं शेयर करूंगा वो स्टॉक एक हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक होगा। तो यहाँ पर इसकी जो फी मैंने रखी है वो है अराउंड 799 रुपीज पर मंथ। हालांकि यहाँ पर ये AED 40 पर मंथ दिखा रहा है, बिकॉज आई एम लोकेटेड इन UAE, मैं दुबई में हूँ, तो यहाँ पर ये दिरहम्स में दिखा रहा है। लेकिन इंडियन करेंसी में ये आपको 799 रुपीज में मिल जाएगा। तो आप ये मेंबरशिप ले सकते हैं और आपको ये लॉयल्टी बैचेस मिलेंगे। तो इन लॉयल्टी बैचेस से आप अब जो मेंबर जितनी देर तक रहेगा उसकी लॉयल्टी बढ़ती जाएगी और फाइनली इट विल बी अ रेड लॉयल्टी बैच। और दिस विल बी लाइक हाउ लॉन्ग यू हैव बीन एसोसिएटेड विद माय चैनल्स। तो आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा वीडियोस को, और आपको मेंबर ओनली लाइव चैट्स भी मिलेंगी जहां पर आप मेरे साथ डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और मैं आपकी कोई भी जो क्वेरी होगी मार्केट के रिलेटेड वो आपका सॉल्व करूंगा और आपको प्रायोरिटी रिप्लाई भी मिल जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस चैनल के अंदर ऐसा क्या मिलेगा आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलेंगे, कोई टिप नहीं मिलेगी आपको। इट इज मोर ऑफ एजुकेशनल चैनल। तो यहाँ पर मैं आपके साथ ऑलमोस्ट हर दिन ऑन अ डेली बेसिस एक वीडियो शेयर करूंगा। शायद कोई दिन ऐसा भी हो जब आपको वीडियो ना मिले, जब मार्केट थोड़ा खराब चल रहा हो, कोई वीडियो आपको तब ना मिले, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से अगर महीने में 30 डेज है तो मोस्ट ऑफ द डेज यू विल गेट अ वीडियो। देयर मे बी एक्सेप्शन ऑफ अराउंड 4 or 5 days when you might not get a video. So I'm not going to overcrowd you with lot of videos. It will be very pick and choose. काफी केयरफुली उन स्टॉक्स को चूज किया जाएगा और वो स्टॉक्स आपके सामने रखे जाएंगे। तो आप इस तरीके से इस प्रीमियम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। जो इसकी फी रखी है मैंने बिल्कुल कम रखी है, इट्स अराउंड 799 दिरहम, 799 रुपीज पर मंथ। सो गाइज, होप टू सी यू सून इन दिस सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। मुझे आपसे सीखना है और आपको मुझसे सीखना है। So guys, thank you very much for watching this video of mine. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे थ्रू WhatsApp, थ्रू Telegram, और एट द सेम टाइम आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक करना ना भूलें। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसके अपडेट्स मिलते रहें और आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। So guys, thank you very much. Have a nice day. Goodbye and good luck.